कैसे चल रहा है? कितना तक हुआ है? मतलब प्रिपरेशन कैसा चल रहा है बताओ? Sir, going good. Actually, yesterday and day before, I think there were no classes, so I was just listening to the recorded videos. ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड हो गया था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटिफाइड का एक जो पोस्ट स्ट्रेटिफिकेशन पार्ट है वो बाद में आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि पीपीएस के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। पीपीएस प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में कुछ आइडिया है? No, sir. देखो अभी क्या है कि प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द साइज। ओके, तो देखो अभी कैसे आता है, कैसे ये मतलब सैम्पलिंग टेक्निक मतलब यूज होना स्टार्ट हुआ, इसको थोड़ा देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो था थिंग इज, जो भी हम सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर रहे थे दैट वाज क्वांटिटेटिव। मतलब फॉर एग्जांपल इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग in the population there are the subjects were quantitative. That means the some numbers, age, maybe some income, anything quantitative but not qualitative. Okay, so in case of suppose we are doing a survey on the basis of the some qualitative responses, जैसे कि for example age. Okay, so in that case, हाँ, और yes और no, देखो ये जो एग्जांपल्स बोला कि yes और no, एग्री और डिसएग्री, ये जो एग्जांपल्स होता है ये सब क्या होता है कि कभी मार्केटिंग सर्वे में यूज हो गया। हाँ, सो ये सब एग्जांपल जब मतलब ये सब जब डेटा आता है हम लोगों के पास, इन दैट केस वी कैन यूज a different sampling technique which is not मतलब based on some quantitative approach. So in many situations, the characteristic under study on which the observations are qualitative in nature. So अभी देखो जब भी qualitative response samples मिल रहा है, in that case we can't use simple random sampling or stratified random sampling. That will be difficult to use it. Okay. For example, the responses of customers in many marketing surveys are based on replies like yes or no, agree or disagree. So अभी देखोगे कि कोई responses होता है कि जैसे कि for example we order some online food. Okay, in that case जो reviews पूछते हैं ना कि how was your experience on the delivery services. तो इसमें क्या होता है कि 5 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4 5. Okay, so within the 5 options we have to select one, that is maybe 1 or 2 or 3 or 4 or 5. Okay, so this type of responses, this type of collected data, collected survey data, this type of data are qualitative in nature. Okay, next example, sometimes the respondents are asked to arrange several options in the order like first choice, second choice, right? तो ये सब होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी होटल बुकिंग हो रहा है, तो सो इन होटल बुकिंग केस, होटल बुकिंग सिनेरियो, सपोज देयर इज अ प्रीमियम रूम, देयर इज अ high valued room. Okay, so people are asked to choose which one is the most preferable room for them. Okay, so ये जब केस होता है ना, ये सब केस में हम लोग की क्वालिटेटिव रेस्पॉन्स यूज कर रहे हैं, राइट। So and the last point is that sometimes the objective of the survey is to estimate the population proportion or the percentage. Okay, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, तो एक कितना प्रोपोर्शन का है अनएम्प्लॉयड पर्सन। फॉर एग्जांपल सपोज वी आर डूइंग अ सर्वे ऑन अ सिटी। ओके, एक सिटी में कितना अनएम्प्लॉयड पर्सन्स है, हाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दैट पर्सन लिस्ट। ओके, और ग्रेजुएट पर्सन्स। ओके, और पर्सन्स फेवरिंग अ प्रपोजल, और मतलब कि एक कोई रूल आ रहा है, इसके अगेंस्ट में कितना लोग है, इसमें फॉर में कितना लोग है, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स के लिए मतलब क्योंकि all those examples are qualitative in nature, we can't use stratified random sampling or we can't use simple random sampling. Yes, you can use, but it will be difficult. Okay, so in that case we can use probability proportional to size. तो
अभी हम लोग इसे ये कैसे करेंगे, ठीक है। सो अभी देखो, द थिंग इज, consider a qualitative characteristic based on the population that can be divided in two parts. One is C and another is C star. तो एक पॉपुलेशन है जिसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि C एंड C star. Okay, so now we are talking about only two options, yes or no, or we can say agree or disagree. Okay, we are not talking about multi options, right? For example, a review 1 2 3 4 5, इसमें कितना रिव्यू दोगे तुम? Okay, so that is not going to discuss in that part. Okay, we are only discussing about two two parts, मतलब either yes or no, either agree or disagree, ये है, ठीक है। So we are dividing the whole population into two classes. One is C, another is C star. So what is C? C is the part of the population when of the person who are saying yes, and C star is the part of the population who are saying no. Okay, so this is quite easy to understand. The population is divided into two parts, C and C star. Okay, so probability proportional to size, इसका मतलब यही है कि we are going to look at the size of the population, size of the population who are saying yes, size of the population who are saying no, that means the size of the C, size of the C star. Okay, so what is the size of C? Size of C is A. देखो लिखा हुआ है इधर कि let A be the number of units in C. Okay, and n minus A, these are the units in C star. So we have the size of the population of C and C star. Okay, so the proportion of units in C is, that is the proportion of unit in C, that is A by N. So probability, we have the probability of selecting a person who is saying yes, that is A by N. Probability का जो language होता है उसमें तो यही होता है, number of favorable cases divided by number of total cases, that is the probability. Okay, so probability equals to A by N, ये तक आ रहा है। So of course, if we have the probability of success, we can get probability of failure. That is the probability of other part. That is the proportion of the units in system. Now, कितना unit system में है? That is the uh, Q, and that value is n minus a by n. Okay, that is 1 minus p. So now we have allocated the proportional part. Okay, proportional part ये हो गया, ठीक है, कि we have the population और उसमें क्या क्या p है, क्या क्या q है. Now we are not talking about the sample. अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कस किया, that is for about the population. population के बारे में डिस्कस किया, अभी तक सैंपल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो now we are going to discuss about the सैंपल्स। ओके, सो ये जो अभी हम लोग जो सैंपल निकालेंगे ना, उस सैंपल को हम लोगों को फ्रॉम द क्वालिटेटिव अप्रोच वी हैव टू ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म दोस सर्वे रिजल्ट्स और सर्वे आउटपुट्स इन सच अ वे वी कैन गेट अ वैल्यूएबल मेजर, लाइक फॉर एग्जांपल मीन, वेरिएंस, ये सब हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट सिनेरियो वी आर गोइंग टू डू दैट। ओके, ये जो हम लोग अभी करेंगे ये इंपॉर्टेंट है कि हम वी आर गोइंग टू take a identical, sorry, I indicator variable, that is y, that is y. So what is y? Y is either 0 or 1. So that will be 1 if ith unit belongs to C, and that will be 0 if ith unit belongs to C star. Okay, ये जो part हुआ, that is the indicator variable yi. Okay, so yi, we have denoted yi. So obviously we get summation yi, that is equals to a. क्यों a है ये? Because 1 means that unit belongs to C. तो पिछले जो हम लोगों ने पेज में किया था कि what is a? A is the number of unit is C. तो जितना भी यूनिट्स है C में, अगर उस सब एक मतलब एक एक करके सम हो गया तो क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। So that is obviously y total, that is the population total, y total, that is equals to a. Okay, right? So what is that? A is the variable associated, देखो ये y का जो definition है, y जो इंडिकेटर वेरिएबल का definition है, that is associated with the characteristic under study. So do you smoke? Suppose there is a question, do you smoke? Yes or no? So
when the person is saying yes, that means he is supporting the characteristic understudy, right? So for that scenario, we have the population total A. A is the total मतलब कितना observer sampling unit है that belongs to C. Okay, fine. And obviously we get the population mean, that is A by N P. P is the population mean. ये I think समझ में आ रहा है कि क्योंकि we are taking the total number of population, that is N, and A is the number of sampling unit that belongs to the set C, that means the set where the person is saying yes. Okay, so we get the population mean equals to 1 by n summation yi. So y summation yi equals to a, because y is the indicator variable and yi are 1 if it I equals to I belongs to C. So it is p. Okay, so population mean ri p. I think इधर तक क्लियर हो जाना चाहिए. पॉपुलेशन मीन पी कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. So I think we can go a little faster with ओके this. ओके, ये सब आता है ना? हाँ हाँ sir. ओके फाइन, ठीक है. So now we talk about the samples. Okay, so what is the thing? So suppose we take n number of samples from the population of size capital N. तो जैसा कि हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कर सकते हैं, वही लिया है कि n samples लिया है, and A be the number of units that in the sample that belongs to C, and n minus a belongs to C star. ठीक है. So देखो, now we are taking small a number of units from capital A number of sampling units. Okay, and small n minus a units, ये जो small n minus a units है, that are taken from capital N minus a. Okay, so obviously we can use hypergeometry distribution to find the probability distribution of this, right? So ये जो टर्म मैंने बोला कि hypergeometry distribution हम यूज कर सकते हैं, that we will be talking later, but for now what will be the sample proportion? Sample proportion is obviously will be a by n, because of this number of favorable person divided by number of total, sorry, number of first sample by total sample, that is p. And we can also obviously write y bar, that is a sample mean, that is p. Okay, so इसको skip कर देते हैं, that's the main thing here. So देखो sample mean आ गया. Now we will be talking about population variance and the sample variance. So what will be the population variance? That will be 1 by n summation yi minus y bar. That is the population variance. Okay, so now what is yi square? Yi square is also a, because क्योंकि जितना भी 1 है, 1 को स्क्वायर करते 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 कितना बार हम स्क्वायर करेंगे, जितना n number of times, मतलब that items number belongs to a. So that's why summation yi is also a. Okay, and since a equals to n into p, so we can Yes, sir. replace. It is also A. It is just like summation. आप बताओ. Understood, sir. Understood. Understood. Summation yi square would be the same as summation yi, which is equal to 111 getting added n number of times, right? Yes, correct. So that is equals to, why it is np? Because actually that summation yi square is Yes, correct. नो, देखो ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, देखो ये जो लिखा है ना, a by n equals to p, that's why a equals to np. हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो. Hello, sir. हाँ हाँ. ओके. हाँ सर सॉरी वो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया. अमित, अमित तुमको भी साउंड आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, समझ में आ रहा है अभी तक जितना समझाया मैंने? Yes, sir. ओके फाइन. तो that is where we are getting a equals to n into p, right?
कहाँ से n a equals to into p आ रहा है? इधर से, right? So we just replace summation yi square equals to n, that is equals to np. So we are replacing that equals to this, and since y bar equals to p, that's why you are replacing y bar equals to p, and we are getting np minus np square. That becomes pq. So n by n minus 1 into pq, that is the population standard deviation. And what is the सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन? सो ये भी इजी है, सेम जो भी पॉपुलेशन था वो ही है, जस्ट हम लोगों ने उसका लोअर केस लिया है क्योंकि लोअर केस यूज कर रहे थे. सो समेशन yi स्क्वायर that is equals to small a equals to np. So we are replacing summation yi square that is equals to np, as y bar is replaced by p. So we are getting n by n minus 1 into pq, right? So from that, देखो ये तो हो गया फॉर्मूला. So what if the population size मतलब n tends to infinity, तब क्या होगा? The population size tends to infinity, then what will be the population variance? Only PQ, no sir. PQ. Only pq. PQ रहेगा only. हाँ बताओ अमित. PQ रहेगा only. हाँ pq रहेगा only. Okay fine, चलो, right? So that is the thing. So in the large population, large number of sampling unit, in that case that will be pq. Okay fine, चलो. तो अभी हम लोगों के पास क्या है कि पी क्यू है, एन है, दैट इज द वेरिएंस. नाउ वी talk about SRSWR and SSWR, because obviously in probability proportion to size in cat case we are using simple random sampling, right? So just everything uh, is simple random sampling except the data type. Data is quantitative here, not, sorry, qualitative here, not quantitative. Okay. So SRSW, in the case of SSWR, what is the population mean? Sorry, what is the sample mean? Y bar, and expectation of y bar equals to capital Y bar. So obviously in that case also that will be also same, and expectation P equals to capital P. ये जो P होगा, P के जगह Y bar रिप्लेस किया, Y bar के जगह capital Y bar और उसके जगह P. So that is the unbiased estimator of P. So sample proportion is the unbiased estimator of population proportion. ये तो obvious है. And what will be the formula of the variance? So variance of p equals to variance of y bar, replace कर दिया है p से, क्योंकि y bar is the unbiased estimate of the population mean. So we get the variance of y bar, that is equals to n by ns square. ये simple random sampling without replacement का result है. ये जो ऊपर में numerator में जो small n है, that will be 1 if we have SRSWR scenario. Okay. So now we have we can replace एस स्क्वायर, ये जो एस स्क्वायर है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ n by n minus 1 into pq. So ultimately the result comes out like this: n minus n by n minus 1 into pq by n. So variance of p in case of SRSWOR, variance of p depends on n n p. Okay, तीनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है. सो क्यू जो है पी सेम ही है, मतलब इफ अ वेरिएबल डिपेंड्स ऑन पी, दैट मींस इट इज ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन क्यू. तो उसका अलग से बोलने का इंपॉर्टेंस नहीं है कोई. So and we can obviously estimate the variance of y bar, that is the var hat p. So that is var hat y bar, that is equals to n minus n by n s square. So इसके जगह पे हम s square के we can replace n by n into pq, and we have the result like this. Okay, so that is the var hat p. Now let's talk about the simple random sampling with replacement procedure. Okay, so with replacement procedure में क्या हो रहा है कि देखो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि पिछले टाइम पे जो भी p था, दैट वाज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ p. ये सेम ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें भी y बार ही आ रहा था.
but the variance term will be changed like this. तो अभी वेरिएंस टर्म क्या हो रहा है, देखो वेरिएंस ऑफ p इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ y बार रिप्लेस कर दिया है। सो जो मैंने बोला था पिछले टाइम कि ये जो ऊपर में न्यूमरेटर में n था SRSW1 के लिए, वो 1 हो जाएगा SRSW1 में। now that will be n minus 1 by n s square. So we replace s square by n minus n by n minus 1 pq, रिप्लेस कर दिया है। अभी रिप्लेस करने के बाद we get the result like this pq by n. So now tell me what is the difference between the variance in SRSW1 and SRSWR. इसमें मेजर क्या चेंज है? What is the major change? बोल सकते हो? Sir, could you please repeat the question once again? मतलब SRSW और SRSW दोनों का वेरिएंस देख लिया, मतलब इसको हम बोल सकते हैं PPSWR एंड PPSWR, राइट? हेलो, Sir, so are you suggesting that this SRS for like attributes is the same as probability? What is it? So what is the full form of PPS that you have said? प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज. Okay, So it okay. is the variance for PPS WR, okay? And previously what we had the variance of PPS WOR. So now my question is, what is the basic difference or major difference in between those variances? Same question बताओ. So in But W, It is lower than, sir, हाँ बताओ, lower than was समझ नहीं आया. it? What is the difference? सर उसमें I can't clearly hear you. बताओ फिर से एक बार. लास्ट उस जो हमारी वो थी इक्वेशन उसको मैं देख नहीं पाया होते हैं ओके ओके रुको जो एक सेकेंड. ये जो था, ये that was the variance of p is the proportion, okay, and क्योंकि इसमें n minus n by s n n s square था, we replaced s square by d minus n minus 1 into pq, and the result was n minus n by n minus 1 into pq by n. ये आ रहा था, okay, यस सर fine. And यस in case of SRSWR, we have n minus 1 into s square by n, right? यस सर Right? And that you replace s square by n minus 1 into pq, and we get get that result. Okay. So my question is, अभी हम दोनों का वेरिएंस चेक किया. नाउ टेल मी द व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू वेरिएंस. जो रिजल्ट दोनों आया ना, इन दोनों रिजल्ट में डिफरेंस क्या है? तो पहले वाले का वेरिएंस लोअर था एज कंपेयर टू दिस वन हाउ? because n minus capital N minus small n divide by n minus 1 quantities multiply this quantity. वेरिएंस इसका लो था, नहीं ठीक है, हाँ ये भी एक रिजल्ट है. और So, so no idea on that. one more thing is, if you look at carefully, n is not present in, मतलब capital N is not present in SRSWR. Yes sir. Okay sir. Population पे depend नहीं कर रहा है. Right. So variance, मतलब that is quite uh, useful कि when we have small sample size. Okay. देखो ये जो n by n minus n by n minus 1 जो है ना, if अब we know that कि दोनों टेक्निक में ये जो SRSWR है इसका वेरिएंस कम है. देखो कि पिछले टाइम जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट, तुम आई थिंक देखे होगे वीडियो, मैंने जो पढ़ाया था, Yes, sir. याद है Yes. ना? उस टाइम we had the variance and in SRSW that was lower, right? Yes, sir. Right. So obviously it is lower, but if we increase the population size, or if we decrease the population size, SRSWR doesn't have any effect on it. Okay, sir. Okay. Okay, we know we can, if we can increase the size of the population eventually, if we had large number of population size, then eventually we can have that SRSWR is SRSWR is quite equivalent to SRSWR, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही आ जाएगा वेरिएंस, मतलब जितना लार्ज होगा पॉपुलेशन साइज जितना बड़ा होते जाएगा ना, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, दोनों का वेरिएंस इक्वल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा. सो बोथ मेथड विल बी इक्विवेलेंट. इसमें लॉजिक करेक्ट, मैंने जो लॉजिक बोल रहा हूँ ना, ये ठीक है ना, समझ में आ रहा Okay, है? sir. Okay. Yes, sir. ओके. अ, और आपको समझ में आ गया? अमित को समझ में आ गया ना? और भूसाली आपको समझ में आ गया है? Yes, sir, yes. ओके, ठीक है, चलो ठीक है, फाइन. So now we have the variance of P, that is PQ by small n. So now I have one more question. Okay, suppose what will happen if the population size and sample size both are equal? That is a hypothetical scenario that, So then in SRSWOR, the variance will become 0. And in SRS with replacement, it will become equal to population variance, sigma square or PQ by capital N. okay fine. Now population variance, sorry, क्या बोला था, variance equals to 0, इसका significance क्या है? So whole सारे के सारे data means whole data is from one set C Yes, only. one set, right? No, one set Yes, तो नहीं होगा. sir. Uh, Either C or C star, yes, sir. Either one set. Yes. right? Can it be possible, मतलब ये possible है क्या? So, sir, in that case, we are sure. So maybe नहीं. we can say that when the population is homogeneous and there is no like attribute as such, like C and C star, if that is not possible, in that case maybe applying this technique would be giving us a variance equal to 0. Suppose we have a population size n equals to 10 and sample size n equals to 10. Okay. So now suppose yi, that is the yi आ गया, yi छोड़ो, कोई 1010 करके है. Suppose summation yi, that is equals to 5. That means p equals to half, q equals to half. Okay. Now uh, what is the value of variance of p? That is equals to 0. So variance of p means जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन का जो पैरामीटर हम ले रहे हैं प्रोपोर्शन, द वेरिएंस इज 0. तो वो जो अमित जी ने जो बताया कि प्रोपोर्शन इक्वल्स टू 0 का मतलब वेरिएंस का 0 मतलब क्या कि ऑल द yi
that belongs to the same class. क्या ये से लॉजिक सही है क्या? So based on the information that you have given, आप कह रहे हो कि summation yi is 5, मतलब a का value 5 है. तो based on that, तो it means that uh, the the number of population units which belong to C is the same as the number of population units that belong to C star. हाँ, तो सेम क्या कहते हैं, सेम इससे तो नहीं आया होगा, मतलब इसी से आ रहा ऐसा है। नहीं है कि सारे नहीं, सी. इसमें दैट इज नॉट, that we are not talking about what is the responses, yes no yes no, that is not we are talking about. We are talking about PIs. That means if a variable is 1, उसका p probability कितना है, 0 उसका probability कितना है. Since both are half and half, that is why we have variance 0. Okay, that is because the without replacement, when we are taking out the samples, जब जब हम लोग samples निकल रहे हैं ना population से, so first of all, suppose since n equals to 10, capital N equals to 10 and small n equals to 10, so we are selecting all the sampling units from the population. But in case of SRSWR, we may not select all the sampling units, because एक सैम्पलिंग को यूनिट को निकलने के बाद उसको फिर से पॉपुलेशन में रिटर्न कर रहे हैं ना. सो दैट माइट हैपन कि जो सैंपल हम लोगों ने निकाला है, मतलब n equals to 10 जो सैंपल साइज है, उसका जो सैंपल निकला है, दैट मे बी हाफ ऑफ, मे बी 0.4 0.6, that completely depends on the what sample we are taking out. SRSWR में सबके सब आ रहा था, क्योंकि रिटर्न करने का कोई पॉलिसी नहीं था, जितना सैम्पलिंग था सब आ गया. सो इसलिए इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया 0.5 0.5. बट इनके सब SRSWR मे बी जो 1 वाला टर्म्स था, मतलब ES वाला टर्म्स था, वो ज्यादा आ गया और नो वाला टर्म कम आ गया. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अमित, समझ में आया तुमको? Yes, sir. मतलब ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कि क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू Yes, से sir. कि Yes, sir. हाँ, मतलब सर उसमें हम होल सैंपल कंसीडर कर रहे हैं, उसमें हम मान लो सैंपल ले रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं, देन डिपेंडिंग ऑन सैंपल्स वेरिएंस. तो वेरिएंस रहेगा, है ना. यस. तो देयर विल बी वेरिएंसेस, मतलब सो दैट इज द थिंग कि ऑब्वियसली, मतलब ये तो ऑब्वियस हो जाएगा SRSWR में कि वेरिएंस नहीं रहेगा. तो ये सब थोड़ा थोड़ा चीजें छोटी छोटी नोट कर लो, क्योंकि ये बाद में काम पे आता है. हाँ, okay, चलो. सो एंड वेरिएंस हैट, मतलब वेरिएंस p हैट, दैट विल बी PQ by n minus 1. ठीक है. So that will be PQ by n minus 1. ये दोनों फॉर्मूला याद रख लेना. Okay. Next, we talk about the estimation of population total or total number of counts. That is A hat. ये जो था उसका estimation निकलना है. ठीक है. Now previously we talked about P hat, मतलब population proportion, उसका जो estimated value that we talked about. Now we can talk about the value of A hat. So obviously A hat is NP, फॉर्मूला से आ रहा है. सो पी पी को जगह लिख सकते ए बाई एन, ये भी रिप्लेस कर सकते, बिकॉज पी इज इक्वल्स टू ए बाई एन. सिंह के सब सैंपल, ये सैंपल है ना, तो सैंपल से आ रहा है एस्टिमेटेड वैल्यू. सो सैंपल वाला लिया है. सो ना वेरिएंस इज वेरिएंस ऑफ ए हैट, दैट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ पी, क्योंकि ए इक्वल्स टू एन पी, सो ए इज कांस्टेंट, बाहर आ गया, स्क्वायर हो गया. एंड वेरिएंस ऑफ पी जो है, वी कैन रिप्लेस इट बाय द फॉर्मूला. वेरिएंस ऑफ पी का जो फॉर्मूला होगा उसी से हम रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. सो
तुम लोगों ने एक बार SRSWOR का फॉर्मूला रिप्लेस करके चेक कर सकते हो इधर व्हाट इज कमिंग इन SRSWR एंड व्हाट इज कमिंग इन SRSWOR, दोनों में क्या क्या फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, ये वो चेक कर सकते हो. ओके, सो एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएंस इज गोइंग टू var at p. सो ये भी इजी है ना, निकाल लोगे ये SRSWR एंड SRSWR से, ठीक है. Next thing is that we talk about the confidence interval, okay, of p. So in that case p जो है term है ना, p sample proportion small p and the difference between population proportion capital P, that is the x minus mu by root sigma square that follows normal 0 1, ठीक है, because n is large. okay, ये जो n है ना, ये जो n है that is more than 100 और ये जो small n है that is more than 30. लार्ज का मतलब दोनों का डिफरेंट है, ठीक है. So we can write the formula here. ये जो formula लिखा हुआ है confidence interval वाला, that is quite easy to understand. इस पे आगे बढ़ते हैं. So variance of p, ये जो लिखा है मतलब सॉरी ऊपर में जो लिखा है ये जो रूट ओवर वेरिएंस ऑफ p लिखा है. So इसमें एक चीज है कि दैट इज द थिंग, दैट इज द एक ऑथर ने किया था ये काम, एक रिसर्चर ने किया था कि उन लोगों ने दिखाया था कि व्हेन you transform a discrete random variable from a continuous random variable, मतलब एक continuous random variable x है, from there we if we transform it to a discrete random variable, there is a continuity correction. okay, तो अगर गूगल पे सर्च करके तुम लोगों को मिल जाएगी ये व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी करेक्शन इन रैंडम वेरिएबल, ठीक है. सो दैट इज 1/2n. so we just add and subtract the value of 1/2n because इसमें जो z अल्फा जो था इसके साथ माइनस हुआ और ये जो दूसरे साइड में था इसके साथ प्लस हुआ, दैट इज द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन. तो ये थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब जस्ट याद रखने के लिए रख सकते हो ये. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द हाइपर जियोमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन. तो एकदम स्टार्टिंग में लेक्चर का स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि वी आर गोइंग टू यूज हाइपर जियोमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. सो व्हाट इज द मेथोडोलॉजी हियर? So when simple random sampling is applied for the sampling of the qualitative characteristic, the methodology is to draw the units one by one, and so the probability of selection of every unit remains the same at every step. That is the methodology. Proper जो methodology हम लोगों ने देखा है SRSWR के लिए और अपलोअर के लिए सेम ही है. If n sampling units are selected together from n units, the probability of selecting some units does not remain same in case of SRS. Okay. So now the thing is, if we have two subsets, cis and cis star, okay. So एक सबसेट से x वैल्यू लिया, एक सबसेट से n minus x ले लिया, so obviously that will become a hypergeometric distribution. So इधर एक सिचुएशन लिया हुआ है, let p and q be the proportions of sampling units in the population that belongs to class 1 and class 2. class 1 and class 2 दोनों क्लास में बिलोंग करते हैं, ठीक है. and np and nq be the total number of sampling units that belongs to 1 and 2. So what is the value of capital N? Capital N equals to n p plus n q. okay, that is the total n. okay, and ओ इधर लिखा हुआ था ना, हाँ लिखा ही तो मैं था मैंने, कोई बात नहीं चलो, ठीक है. तो that is the value of total जो population है that is n. okay, तो ये तब तो होता ही है. okay, fine. And we have selected small number of samples using SRS in which n1 is selected from class 1 and n2 is selected from class 2. हम लोगों ने क्या किया कि n1 number of samples are selected, ये select किया कि class 1 से, and n2 number of samples को select किया
क्लास 2 से। ओके, ये जो N2 है। ओके फाइन। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ N1 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि NP by N1 into NQ by N2 divided by NCN, that is the standard hypergeometry distribution with N1। ओके, N1 की बात कर रहे हैं हम लोग। N2 भी कर सकते हो, वो भी सेम ही है, जस्ट चेंज हो जाएगा। And when n is large, then it tends to binomial distribution, and probability of n1 that follows a binomial distribution the parameter p and n1. So you can also talk about n2, probability of n2 that is equals to nc n2 p to the power n2 1 minus p to the power n minus that is n1 हो जाएगा वो टर्म, ठीक है, जो 1 minus p का होल टू द पावर n1 आ जाएगा। So that is when that is what we can use when n tends to infinity। okay, so that is also important। कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आ गया ऐसा ऐसा क्वेश्चन, मतलब ये जो मैंने इधर जो भी किया है ना, इधर से क्वेश्चन आ सकते हैं कि we have a population of size 500 एंड जिसमें आपको p दे दिया कि p equals to 0.5 0.6 and q equals to 0.4 and you are provided the value of n, मतलब total number of samples, and n1 is the number of samples in class 1। So now you are going to find the value of the probability of n1। So probability of n1 equals to that formula we are going to use here। okay, जो formula दिया हुआ है वो यूज कर लेंगे, ठीक है। Sir, I have a question. When you're saying probability of N1 means exactly what is this P of N1? That means probability that n1 is selected, that is selected n1 items that belongs to class 1। Sir, okay, but why do we want to find the probability of N1 units being selected? We only decide, no, what the size of N1 will be. no, no, we can decide what is the size of n, total number of samples। अब उस sample में we are going to select smaller number of sampling units from the population। okay, 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 got it, but we sir. don't have any idea about n1 n2। ओके, वी नो कैपिटल N1 कैपिटल N2, मतलब जो कैपिटल NP और कैपिटल NQ है, मतलब पॉपुलेशन में कितना यस कितना नो है वो पता है मुझे, और सैंपल में कितना है तो पता नहीं है ना, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन निकल रहा है हम लोग। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना। But sir, वी हम तो कैपिटल P और कैपिटल Q एस्टिमेट करना चाहेंगे ना कि पॉपुलेशन में कितना होगा प्रोपोर्शन। ये तो रिवर्स हो गया। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखो एक केस स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक पॉन्ड दे दिया, ठीक है। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड, तो आप कैसे निकालोगे? We'll take a sample, हाउ? or maybe if possible we would count physically all the fishes, but that is not feasible. So we'll take, let's say, a sample of all the fishes and get an estimate. We'll take a SRS, let's say. तुम सैंपल कैसे लोगे? दैट इज द क्वेश्चन। सैंपल, हाउ यू आर गोइंग टू टेक द सैंपल? ओके, अमित। So we could just pick up one. Divide the area of whole pond into small pieces. हाँ, डिवाइड द एरिया कर दिया ना। अभी जो मछली तुम्हारा जो पहला एरिया में था, कुछ देर बाद जब तुम काउंट करने बैठ जाओगे ना, कुछ देर बाद वो दूसरे एरिया में चला जाएगा, कैसे काउंट होगा? वो तो फ्लो कर रहा है मछली ना। So how are you going to
count the total number of faces. वो तो लॉजिकल नहीं बन रहा है फिर। हाँ Yes, sir. बताओ। हाँ तुम क्या बोल रहे थे बताओ। हाँ सर, समझ में आया आपका पॉइंट। हाँ तो आप आंसर क्या होगा फिर, मतलब कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फिश इन द पॉन्ड। देखो एक लॉजिकल रिस्पॉन्स निकलते, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक आउट स्मॉल एन नंबर ऑफ फिशेस फ्रॉम द पॉन्ड। ओके अभी मैं इधर दिखा रहा हूँ, एक सेकंड काम करते हैं। सपोज एक काम करते कि स्मॉल एन लिया है, कहा गया मेरा पॉइंट, इधर आ गया स्मॉल एन। ओके we take out small n number of fishes from the pond and we marked them। mark मतलब एक कोई रिबन ऐड कर दे उसके अंदर, ठीक है, मार्क कर दिया इसको, ठीक है। so now if the river have total, मतलब सपोज हम लोगों के पास पता नहीं कितना कितना अभी मछली था रिवर में, so we assume there are n number of fishes in the river। So what is the remaining number of fishes? कैपिटल N माइनस N, जिसके पास रिबन बधा हुआ है नहीं। सो क्या किया, देखो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट समझते एक बार, ठीक है। वी हैव स्मॉल इन नंबर ऑफ फिशेस, ओके, जिसको हम लोगों ने रिबन बांध दिया, मतलब पॉन्ड से निकाला कुछ फिशेस को, उसको रिबन बांध के छोड़ दिया, ठीक है। सो वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन, कितना सैंपल लिया है, but we don't know the population size। so now what we are going to do, that is we will take out another k sampling units from the pond। so in that portion, suppose k1 is the number of fishes who have ribbon जिसको बंधा हुआ है, और k2 is the number of fishes who doesn't have a ribbon। अभी तक समझ में आ क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, ओके sir. फाइन। नाउ ये जो समझ में आ गया ना। सो नाउ इफ वी टेक, देखो कितना प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, देखो इन नंबर ऑफ टोटल रिबॉन्ड फिश, उसमें से के वन को सिलेक्ट किया, एन सी के वन, एन माइनस वन रिबन फिश था, उसमें से के टू को सिलेक्ट किया, के टू, एन माइनस एम सी के टू आ गया, डिवाइडेड बाई कितना टोटल एन था, कैपिटल एन सी के, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ के वन। तो अभी देखो इसमें से हम लोग, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि कैपिटल एन कैसे निकाल सकते हो, तो मतलब पॉपुलेशन साइज को निकाल कैसे सकते हो, फ्रॉम हियर वी कैन राइट k1 divided by small n, that is equals to k2 divided by capital N minus n। We can write this, उल्टा लिख मैंने एक्सचेंज कर दिया, बट इट विल वर्क। ओके के वन बाई के टू एक्चुअली क्या होता है, के वन बाई के टू इक्वल्स टू एन बाई एन माइनस एन, ये होना चाहिए था, ठीक है, मैंने जस्ट एक्सचेंज कर दिया, फिर भी चलेगा ये। हाँ ये लिख सकते हैं ना। जो सैंपल था, मतलब पॉपुलेशन में जितना ये जो पी और क्यू का बात हो रहा है ना, पॉपुलेशन में क्यू पी और क्यू, ये जो स्मॉल एन लिया है ये है पी एन पी, ये जो एन माइनस एन लिया है दैट इज एन क्यू, ये पॉपुलेशन का बात हो गया। ये जो एन पी लिया ना, दैट एन पी इज आवर एन, और ये जो एन क्यू लिया है दैट एन क्यू इज आवर एन माइनस एन।
Now you can compare it. तो इधर K1 K2 small n that were known terms, ये तो मुझे पता ही है ना. So from here you can easily estimate capital N. समझ में आ रहा है? सर हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ फॉर्म बन रही है दैट हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का तो सिमिलर टू हाइपरजोमेट्रिक केस. हाँ सिमिलर, ये तो उसी का ही केस है. इन hypergeometry, if you use hypergeometric distribution, you will find the probability of selecting the n1 items, n1 or k1 pieces, and if you don't use, you can easily estimate. मतलब जो मैंने formula use किया ना, that is the formula for you estimating the value of capital N, ओके. right? So that is the thing, मतलब we also ये जो it depends हम लोग क्या क्या मतलब प्रॉब्लम में क्या है और हम लोग क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है. सो ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है ना, इसका जो सॉल्यूशन मतलब वही वही हम सॉल्व करना चाहते हैं. हम लोग वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पॉपुलेशन साइज. इट इज नोन, पॉपुलेशन साइज इज नोन. ओके, ये थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम था. जो प्रॉब्लम हम लोगों ने किया कि पॉपुलेशन साइज इज अननोन, वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज यूजिंग प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज. ये देखो प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज यूज हुआ है. तो ना वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट. वी आर इंटरेस्टेड इन इन फाइंडिंग सैंपल एंड ऑप्टिमल सैंपल, क्या बोलते उसको, स्कीमा. ऑप्टिमल सैंपल स्कीमा जिसमें क्या होता होगा कि वेरिएंस विल बी मिनिमाइज्ड. वेरिएंस विल बी मिनिमाइज्ड, करेक्ट. यस सर. Okay, so that's why we are interested in taking out the variance, estimating the samples. Okay, sample जितना जितना कुछ है उसके ऊपर डिपेंड करके we are going to estimate the variance properties. Okay, so here we have the probability of n1, that is the hypergeometric probability. And if we take the binomial distribution, if we take it tends to infinity, then we have the binomial distribution, that is the approximate version of hypergeometric distribution. Okay, now we are going to discuss inverse sampling. समझ में आ रहा है ना? तो अभी तक जितना हुआ है. हेलो, यस सर मोस्ट ऑफ द okay, fine. So what is inverse sampling? So the sampling is continued. इसमें क्या होता है कि the sampling is continued until a predetermined number of units processing the attribute under study occur in the sample. Sorry, क्या कर दिया मैंने, हाँ. Occur in the sampling. So that is useful for estimating the population proportion. That is useful for estimating the population proportion, जिसको हम लोगों ने यूज करेंगे population proportion को estimate करने के लिए, ठीक है. And that will be the thing. In that inverse sampling we are going to use the simple random sampling without replacement procedure. Okay, hello. यस सर. Okay, and the sampling is discontinued as soon as we get the जो हम लोगों ने प्री डिटरमाइंड जो नंबर था वो अचीव कर गया. दैट इज द, और यू कैन से एट्रीब्यूट्स इक्वल्स द प्री डिटरमाइंड नंबर. जो
कैरेक्टरिस्टिक है वो अचीव कर गया, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक और द एट्रीब्यूट्स का नंबर अचीव कर गया, तो इन दैट केस we are going to discontinue the procedure. Okay, so that's the thing, इधर तक हो गया। हाँ, नेक्स्ट थिंग इज दैट इसका थोड़ा मेथोलॉजी में आते हैं। सो सपोज एम इज द प्रीडिटरमाइंड नंबर दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोसेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक। ओके, एम इज द प्रीडिटरमाइंड नंबर जो चाहिए था हम लोगों को, ठीक है। द सैम्पलिंग इज कंटिन्यूड अंटिल एम नंबर ऑफ यूनिट्स आर ऑब्टेन। जब तक एम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्टेन नहीं हो जाता है सैम्पलिंग चलेगा, उसके बाद डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। ओके, therefore, the sample size n required to attain m becomes a random variable. So n is the random variable in that case. Okay. So now कैसे हम लोगों क्या करेंगे कि जो n है इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, consider the stage of drawing samples t such that t equals to at t equals to n, the sample size n completes m units with attribute. Thus, the first t minus 1 draws would contain m minus 1 units in the sample processing the characteristic out of n units. So, that is the thing. You can say it is quite a case of नेगेटिव बाइनोमियल। उसमें भी ऐसा ही होता था, राइट। नेगेटिव बाइनोमियल में भी ऐसा होता ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, याद है कि उसमें भी हम बोलते थे कि t माइनस वन में m माइनस वन यूनिट्स आ जाए, Yes, sir. Getting राइट। a success, our success. यस, करेक्ट। ओके, सो दैट्स द ऑलमोस्ट सिमिलर टेक्निक से यूज हो रहा है, क्योंकि हम लोग इधर बाइनोमियल मतलब जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसी में ऐसे ही कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर ये दोनों ही टर्म था और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकल लेते थे, ठीक है। सो इक्विवेलेंटली देयर आर t minus m units which does not possess the characteristic out of np such units in the population. So the other t minus m units है जो nq पॉपुलेशन साइज है उसी से आ रहा था। सो मतलब इसका जो मेन फंडामेंटल थिंग है कि लास्ट जो ड्रॉ होगा दैट इंश्योर्स दैट द यूनिट सिलेक्टेड इज द कैरेक्टरिस्टिक। जो कैरेक्टरिस्टिक है मतलब सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सी, सेट सी, एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि सेट सी को लिया था कि कैरेक्टरिस्टिक, तो उसी में आ जाए, ठीक है, लास्ट ड्रॉ। Now the probability distribution of n. So probability distribution of n that can be expressed as probability of two things. मतलब जो देखो n ड्रॉज है, ठीक है। n ड्रॉज में जो पहला n माइनस वन ड्रॉ है उसके साथ जो लास्ट जो ड्रॉ है that is independent. Okay, so that is why we multiplied these two things. Okay, so p of n equals to probability of in a sample of n minus 1 units we want m minus units which possess the attribute, and the last draw is the attribute. Okay, so what is the probability of first term? That is a hypergeometric probability. Okay, so np is the number of p मतलब जो सक्सेस है, सपोज ये yes है, उसमें से a माइनस वन को सिलेक्ट कर दिया और जो नो है उसी में से n माइनस m को सिलेक्ट कर लिया, और टोटल जितना है, टोटल क्या है कि n था, पॉपुलेशन था, उसी में हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल n नंबर वन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंड द लास्ट टर्म विल बिकम np माइनस m प्लस वन। मतलब क्या है कि देखो m ऊपर जो न्यूमरेटर टर्म है ना, न्यूमरेटर टर्म क्या है कि mp that was the yes number of yes in the population माइनस m, ये जो m प्लस वन है ना, ये मतलब क्या है ना, माइनस इन ब्रैकेट m माइनस वन, क्योंकि प्रीवियसली वी ऑलरेडी सिलेक्टेड m माइनस वन यूनिट्स, दैट्स व्हाई। ओके, दैट्स व्हाई वी आर मतलब क्या है कि उसको रिमूव कर रहे, नंबर ऑफ यूनिट्स का हम रिमूव कर दे रहे कि टोटल नंबर ऑफ ईएस से, ठीक है, ये बोल सकते हो। एंड नीचे जो था डिनोमिनेटर में दैट इज द टोटल पॉपुलेशन माइनस सैंपल साइज, कितना सैंपल ड्रॉ कर चुके हैं हम लोग,
कि पहले हम लोग n-1 सैंपल्स ड्रॉ कर चुके हैं, so that's why it is like capital N minus n-1. Okay, so this is how we are getting the probability of the nth sample. ओके, सो देखो इधर मैंने इधर थोड़ा लिखा हुआ इधर, द फर्स्ट टर्म इज डिराइव्ड यूजिंग द hypergeometric distribution as the probability of having the sample of size n-1 in which m-1 units are from np units and other remaining are from nq units. Okay, so this is the first term and the second term is the probability associated in the last draw. ये तो एक सिंगल सिंगल प्रोबेबिलिटी है, इट्स तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज दैट, इसमें मैंने साइड में लिख के रखा है, देखो, फ्रॉम समेशन ओवर m टू m प्लस एन क्यू। m मतलब m क्या था, याद है, m इज द प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ यूनिट, so from m to m plus nq summation pn, that should be equals to 1. Okay, that was the important thing. Okay, ये भी याद रखना है कि क्योंकि क्योंकि ये जो n है ना, n is running from m to m plus nq तक रन हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। बताओ, ये जितना भी मतलब डिस्कस किया, मतलब हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे यूज करके प्री डिटरमाइंड एम को लिया था। तो ये लास्ट में जो समेशन था, इसमें ये जो n रैंडम वेरिएबल है, मींस m से m प्लस एन क्यू वैल्यू में वेरी करेगा। हाँ, क्यों डेट करेगा, एंड देखो, n स्टार्ट्स फ्रॉम m, ये क्यों हो रहा है, देखो, सर m हमें एट्रीब्यूट्स चाहिए थे फॉर दैट, सो n बताओ क्या मतलब, बताओ एक बार फिर से। सर m नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स चाहिए थे ना इन दिस केस m इज टू फिक्स्ड, राइट, डिटरमाइन। हाँ m इज फिक्स्ड, यस सर। और n क्या था, n देखो, n था, कहा गया, मेरा ये कहा गया, हाँ, ए सैंपल साइज n रिक्वायर्ड टू अटेंड m, मतलब पहला ये, उसके बाद नो, उसके बाद ये, उसके बाद नो, ऐसे करके कितना साइज का सैंपल चाहिए मुझे, सो दैट वी कैन हैव m es, दैट वाज द थिंग, राइट। सो अभी उसका एक मिनिमम जो नंबर है n का, वो है m, क्योंकि वी सपोज वी वांट 10 नंबर ऑफ es, राइट। अगर 10 ईएस चाहिए तो मुझे 10 तो चाहिए, 10 से तो स्टार्ट होगा ना सैंपल साइज, क्योंकि ऐसा, दैट इज द रेयरेस्ट केस कि ऑल दोस 10 आइटम्स आर ईएस। ओके, पहला हो गया, कंडीशन हो गया। नेक्स्ट क्या होगा कि 11 सैंपल्स ले लिया जिसमें 10 ईएस 1 नो, उसके बाद 12 सैंपल ले लिया जिसमें यस 10 सर, ईएस 2 नो। कंटिन्यू। हाँ, ऐसे करके कितना तक जा रहे हैं हम लोग, कितना तक जा रहा है, n प्लस एन क्यू। वाई इट इज एन क्यू, देखो, बिकॉज अगर m का वैल्यू, n का वैल्यू m प्लस एन क्यू से ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो टर्म है ना, दैट विल बी इनवैलिड। ओके सर। समझ में आ गया? यस। ओके, फाइन। और ब्रूसली, आपको समझ में आ गया? हाँ सर, ये वाला पार्ट समझा। है ना, ठीक है, ओके, तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट इसमें कि नाउ वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ओके, तो देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो ये जो पी हैट है, पी हैट निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो, पी हैट इज अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पी दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ले रहे थे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करते कि एक
वैल्यू लेते हैं m-1/m-1, उसके एक्सपेक्टेशन लेते हैं इधर. So expectation of this equals to from m equals to a, दे तो m का रेंज ही हो गया ये, into probability of n. तो probability of n ये पूरा probability of n है, ठीक है. और इसको थोड़ा अरेंज किया है कि m from m to m plus nq minus 1. क्यों ये लिया देखो, ये जो n minus 1 था ना, ये n minus 1 ये n minus 1 के साथ कट जाएगा और इधर आ जाएगा n minus 2. ये जो ऊपर में जो m minus 1 था, ये जो m minus 1 था, दैट विल इसका जो मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, उसके साथ ये भी कट जाएगा और इधर रह जाएगा m minus 2. So for that case we have this value and इसका जो अपर लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगा, चेंज होके बन जाएगा m plus n minus q minus 1. समझ में आ गया, ठीक है. इसको चलते आगे लेके चलते हैं. सो नाउ वी आर मतलब ये जो हाँ एनपी की जगह पे np minus 1 ये सब रिप्लेस किया है ना, इसको यूज करके वी गेट दिस इक्वल्स एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू p. क्योंकि ये जो टर्म था ये पूरा एक्सपेक्टेशन जो होगा ये p हो जाएगा, इसका पूरा समेशन ये पूरा p आ जाएगा. सो नाउ m-1/m-1 that is the unbiased distributor of p. क्योंकि ये याद करो लास्ट जो टर्म है ना, लास्ट जो वैल्यू है वो तो ईएस आएगा, मतलब उसका इनेथ टर्म विल बी m, इनेथ टर्म विल बी m. So we are talking about the remaining m-1 terms. So obviously number of favorable items are m-1 and number of total items are n-1 because लास्ट जो वैल्यू है ना उसका कोई मतलब नहीं बनता एस्टिमेशन में, वो तो श्योर इवेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा ना. तो पहले जितना सैंपल लिया था n-1 उसी में जितना सक्सेस है m-1 उसी को यूज करके हम लोग एस्टिमेट करेंगे, राइट. Sir, could you please repeat that? सो द थिंग इज जो लास्ट जो इवेंट है मतलब पहला जो n सैंपल जो ले रहा है ना उसका जो लास्ट सैंपल है दैट सैंपल शुड बी m, मतलब यस, मतलब हम लोग सोच लेते हैं यस और नो तो उसमें यस होगा क्योंकि वो श्योर है. यही कंडीशन है, ये जो टेक्निक है, ये जो हम लोगों ने इनवर्स सैम्पलिंग कर इसका सर वी मेथोडोलॉजी हैव में टू. यही ये कंडीशन है ना. सो यस दैट सर, हमें द m तक प्रीवियस करना है m-1 देन. सैंपल है उसी में m-1 ये होना चाहिए था. सो ऑब्वियसली पी हैट जो और हम लोग यूज कर रहे हैं ना नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स पे नंबर ऑफ टोटल आइटम्स दैट शुड बी m-1/n-1. सो वो ही हम लोग यूज किया, उसी का एक्सपेक्टेशन इक्वल्स टू p आ रहा है. That is the thing. Okay, and similarly we can find the variance of p hat. So variance of p hat that is equals to expectation of p hat square minus p square जो expression of p है. So इसी से हम लोग variance निकल सकते हैं. एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर निकलने के लिए ये वाला टर्म यूज हुआ है m-1 इंटू m-2 डिवाइडेड बाई m-1 इंटू n-2, ये वाला टर्म यूज हुआ है, ठीक है. इसी का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे. इसी का एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा, वो जो सेम सेम फॉर्मुलेशन बनेगा और उसी में जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में जो लास्ट में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा धीरे धीरे करके. हाँ ये देखो कैसे चेंज हो रहा है. एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस टर्म इनटू pn. सो अभी जो pn था ये बाहर आ रहा है और ये जो अंदर जो m-1 था वो m-3 हो गया और n-1 था ये भी n-3 हो गया. देखोगे पिछले जो मीन जब निकल रहे थे, मीन निकलने के टाइम n-1 था वो n-1 की जगह m-2 हो जाएगा और m-1 की जगह m-2 हो गया था. सो सिमिलरली क्योंकि इसमें दोनों टर्म है सो वी आर गेटिंग m-n-, ये जस्ट कैलकुलेशंस है, ये जस्ट कैलकुलेशंस और कुछ नहीं है.
सो इसमें हम लोग निकल सकते हैं कि n माइनस जो एक्सपेक्टेशन का वैल्यू है दैट विल बी बिकम दिस। तो फ्रॉम हियर जस्ट वही जो होता है ना बाइनोमियल के जैसे वेरिएंस निकाल लेते हैं कि पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ p इंटू पी माइनस वन निकालो, अभी उसके पास एक्सप्रेशन ऑफ p से ऐड कर दो, ऐसे करके करके ये सब वैल्यू आया है। सो वेरिएंस ऑफ p हैड, ये मैं थोड़ा डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, ये तुम लोग निकल लोगे ऐसे करके। सो दैट बिकम्स दिस इक्वल्स टू ये जो फाइनल वाला टर्म है ना p हैट्स का माइनस ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ p उसका होल स्क्वायर है दूसरा वाला टर्म। सो ये जो टर्म आ रहा है इसको थोड़ा एक बार देख लो, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फिर भी, राइट। तो समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ है ये सब, या एक्सप्लेन करो ये एक एक करके। So this is just like algebraic part, na? तो हाँ हाँ एल्जेब्रिक पार्ट है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके फाइन, ठीक है चलो इसी को हम स्किप कर दे, इसको कोई मतलब नहीं बनता है ये सब, ठीक है। अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगा दैट विल बी p इंटू वन माइनस पी बाई एन माइनस टू, यही आ जाएगा लास्ट में जाके इसी का जो कैलकुलेशन करोगे। sir, हम्म इनवर्स सैम्पलिंग इस टॉपिक का वैसा तो कोई इंक्लूजन मतलब इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस एज सच, बट आपने ये फिर भी सिखाया है, तो आई थिंक दिस इज फॉर दोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं उनके लेना। नहीं नहीं ये सब इंक्लूडेड ही है, देखो ऐसा कोई मतलब नहीं इनवर्स सैम्पलिंग नहीं है, ये जस्ट अ टेक्निक ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज और कुछ नहीं, ठीक है। ये इतना डिफिकल्ट भी है नहीं, ठीक है। अभी तो अगर फॉर एग्जांपल ये नेट या फिर गेट देने का मतलब क्या है कि हम लोग रिसर्च करने वाले हैं ना, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम न्यू थिंग्स, राइट। सो अभी अगर एक ही पीपीएस समझ के सिर्फ पीपीएस का ही मीन बैलेंस निकालेंगे तो इसका मतलब नहीं बनता, क्योंकि यू हैव टू डू इट मल्टी डिसिप्लिनरी ना। सो ये थोड़ा पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, पढ़ो, ठीक है। क्योंकि जितना नॉलेज गेन करोगे ना उतना अच्छा है कि सीएसआई नेट के लिए उसके लिए भी ये पीपीएस का अंदर ही आएगा, मतलब ऐसा कुछ तो सच तो कहीं पर लिखा तो नहीं है ना कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि इसी में तो पीपीएस ही यूज हो रहा है, राइट। तो कर लो, ठीक है, मतलब छोड़ना नहीं ये सब, ये सब मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। बहुत कुछ इससे भी आगे बहुत कुछ चीज है जो मैंने ऐड किया ही नहीं हूँ, ठीक है इसमें, क्योंकि वो उसमें लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। अभी मुझे रेशियो रिग्रेशन मेथड पढ़ाना है, ये सब सिस्टमेटिक कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स दिखाना है, तो बहुत लेंदी हो जाता है ना, इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया। लेकिन इससे भी आगे और भी बहुत टेक्निक्स यूज हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसको स्टडी का मतलब छोड़ना नहीं है ये सब, मतलब कहीं पे लिखा तो नहीं है सीएसआई-नेट में कि पीपीएस का अंदर ये चीज नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है ना पीपीएस है ना। हाँ सर, मतलब तो, तो ऐसा इसको इनवर्स सैम्पलिंग का टॉपिक नहीं है, बट अदरवाइज है। नहीं, मतलब ये तो पीपीएस यूज हो रहा है ना, पीपीएस, ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। सीएसआई का कभी कभी क्वेश्चन कहाँ से आएगा किसी को पता नहीं है, ओके फाइन। नेक्स्ट थिंग इज दैट जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था कि वी आर टॉकिंग अबाउट द population with two classes. So what will happen if the population has more than two classes? Then we have to estimate the proportion of P1 hat, P2 hat, P3 hat and Pn hat, सबका जो proportion है वो निकलना पड़ेगा, मतलब estimation निकलना पड़ेगा, ठीक है। So that is the situation where population is divided into more than two classes, okay। जैसे कि मैंने बोला कि कोई रिव्यू
जोमेटो या फिर कोई ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर हो गया, कोई फ्लिपकार्ट का रिव्यू हो गया, कि अमेजोन का, ये लोग पूछते हैं कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, रेट अस 1 2 3 4 5, तो आप लोग कर देते हो रेटिंग, कि गूगल प्ले स्टोर में भी रेटिंग होता है ना। सो ये सब, जैसे कि ये देखियो कैटेगरीज है, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, मिल्ड, वेरी मिल्ड, ये सब है जो। तो वी हैव, इफ वी हैव मोर देन 2 क्लासेस, तो इसमें क्या होगा, कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल चीज है, दोनों में कर लिया तो अभी इन अगर के, ये जो लिखा है कि के म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लासेस में डिवाइड किया है, कि के क्लास हो गया तो भी सब हो जाएगा। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग C1 C2 CK, मतलब C1 C2 CK the number of units that have been drawn from the mutual exclusive classes C1 C2 up to CK, जो कैपिटल में लिखा हुआ है ना, तो उसी में निकलना है। और P1 P2 PK देखो ये भी लिखा हुआ है कि दिस द प्रोपोर्शंस ऑफ यूनिट्स इन द क्लासेस। तो ये जस्ट सेम ही है, जितना जो भी हम लोगों ने किया था कि टू सैंपल में, कि वी फर्स्ट डिवाइड द होल पॉपुलेशन इनटू टू क्लासेस C1 and C2, then we have the population proportion P1 and P2, okay, and we have the sample proportion and sample classes, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा था। इधर भी सेम है, we have k number of classes here, that are C1 C2 CK, and the proportions are P1 P2 PK, capital P1 capital P2 capital PK, the proportions of each of the classes, ये भी दिया हुआ है। So what is the probability of observing small c1 small c2 and small ck, that is the combination term, ये जो लिखा हुआ टर्म है ना, ये है देखो सिंपल जो भी था हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके, ये तो मल्टीप्लिकेट हो गया, बट सिंपल है, कोई मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। हाँ, मतलब इसका अगर आप और लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ले लोगे तो दैट विल बी मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। एंड द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इस अगर pi है, देन सैंपल प्रोपोर्शन स्मॉल pi, दैट इज इक्वल्स टू ci by n, ठीक है। सो व्हाई ci इज द सैंपल साइज, मतलब नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट इन दैट पर्टिकुलर क्लास, ओके। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ पी भी ये आ रहा था, एंड ये सब थोड़ा याद रखो, और कुछ नहीं। एंड वेरिएंस ऑफ पी दैट इज दिस, ओके। एंड सी इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, उसका भी एस्टिमेशन निकालना। सो इन पीपीएस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू, वी आर गोइंग टू एस्टिमेट पी, वी आर गोइंग टू एस्टिमेट सी, दोनों हम लोगों को एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, एस्टिमेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, वेरिएंस चाहिए, वो भी आ गया इधर ऐसे ही करके, ओके फाइन। लास्ट थिंग इज दैट, जो हम लोगों ने किया था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, उसी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन अगर रहेगा तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कैसा दिखेगा, ठीक है। So suppose we have two classes C and C dash, देखो इधर लिखा हुआ है कि its values will fall into one of the two mutual exclusive classes, that is C and C dash. Ideally only two stratas are needed in which all the units can be divided depending on whether they belong to C or its complement C dash. Okay, so the stratas, ये जो चीज है, that is difficult, that is quite difficult. That's why the stratas are constructed in such a way the proportions in C varies as much as possible among strata. जो C का जो proportion है, मतलब ऐसा नहीं हो सकते कि जो C है ना उसमें मतलब वेरिएशन ना रहे, मतलब ऐसा हो नहीं सकता ना, मतलब सॉरी ज्यादा वेरिएशन है, वो ऐसा हो नहीं सकता स्टेटा के अंदर। मतलब स्ट्रेटिफाइड असेंबली का टेक्निक से फंडामेंटल यही था कि जो स्टेटा बन रहा है, इस स्टेटम है, स्टेटम के अंदर का जो वेरिएंस है दैट विल बी लोअर, वेरी लोअर, ओके। सो व्हाट इज पी आई इक्वल्स टू ए आई बाई एन आई। what is ai? AI is the number of sampling unit, it is वो जो 1 और 0 था ना, वही चीज है।
स्मॉल पी आई इज द सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है। सो कैपिटल पी आई एंड स्मॉल पी आई दोनों हम लोग के पास प्रोवाइडेड है, and this is the thing, this is the estimated value of population proportion, that is PST, that is summation ni pi by n। ये थोड़ा याद रखो तुम लोग, हाँ, ये थोड़ा याद रखने का चीज है। एंड उसके बाद तो सेम ही है, जो इंडिकेटर वेरिएबल यूज किया था, ये आया था एस आई स्क्वायर आया था, ये भी सेम है, क्यू आई का, ये तो सेम ही है, सब कुछ सेम है, जस्ट वही हम लोगों ने जो यूज किया था। हाँ, ये जो पीएसटी जो है, एस्टिमेट जो है एक पीएसटी, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, देखो, अगर पिछले क्लास में देखोगे कि जो वाई एस टी बार जो था, वाई बार एस टी जो था, दैट वाज समेशन डब्ल्यू एच एस एच बाई एन था ना, सेम चीज है इधर, और कुछ नहीं। एंड इधर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का जो वेरिएंस है, उसी का फॉर्मूला को आप लोगों ने यूज किया है कि डब्ल्यू वाई, ये इधर जो भी था वही लिखा है, मतलब वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी, ये भी ये सेम चीज लिखा है, वन बाई ए स्क्वायर को इन स्क्वायर को बाहर लेके आ गया उसके बाद। सो देन क्या किया, हाँ, देन एस आई को रिप्लेस किया, एस आई स्क्वायर को, एस आई स्क्वायर जो था, एस आई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया इसी टर्म से, ठीक है, इसी टर्म से रिप्लेस कर दिया है। ओके, एंड उसके बाद वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल एलोकेशन का जो फॉर्मूला है, उसी पर ये भी अप्लाई कर दिया, और जो वेरिएंस ऑफ, मतलब उसी को हिसाब करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो जो एन का वैल्यू जो है, ऑप्टिमम वैल्यू जो है एन का, वो हम लोग निकाल सकते, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था ना, ऑप्टिमल वैल्यू निकालने का टेक्निक, वो भी सेम इधर यूज किया है कि पहले एक काम किया कि फिक्स्ड कॉस्ट किया है, मतलब कॉस्ट को किया है, वेरिएंस को मिनिमम करने के लिए कॉस्ट को फिक्स किया है, तो उसके बाद ये जो एन है ना, उसका एन, हाँ, निकल लिया है, ठीक है। सो इधर तक ही था ये सब चीजें, छोटा छोटा करके इधर इधर खत्म होता है पीपीएस, पीपीएस के इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। सो मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो और रिग्रेशन मेथड, उसी को, ये समझ में आ गया ना? यस सर। सर ये ओके, सारे ड्राइव कर सकते हैं इन द सेम वे, हम द सेम है मीन्स सारे। रिप्लेस करेंगे जो वाई बार की जगह प्रोपोर्शंस को। हाँ हाँ हाँ, देन सेम ही है, पूरा एकदम सेम है, जस्ट टेक्निक्स याद रखो। देखो, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का जो टेक्निक है, उसी को यूज किया इधर, सेम एकदम पूरा डिटो, जस्ट प्रोपोर्शनल ओके। कर दिए, जस्ट वही, ठीक है। एनीथिंग एल्स, समझ में आ गया ना पूरा? यस सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, चलो, ठीक है, Thank you, sir. Good night. ओके।